بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس خون ریز مارکے میں ابو سفیان کو تلاش کرتا اس طرف پہنچا۔ کیا ہم مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے قابل نہ رہے؟ خالد نے ابو سفیان سے کہا۔ کیا قریش کے ماؤں کے دودھ ناقص تھے کہ یہ مٹھی بھر مسلمانوں سے خوف زدہ ہوئے جا رہے ہیں؟ دیکھو خالد، ابو سفیان نے کہا، جب تک محمد ان کے ساتھ ہے وہ زندہ سلامت ہے، یہ خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک شکست نہیں کھائیں گے، تو یہ فرض مجھے کیوں نہیں سونپ دیتے؟ خالد نے کہا۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، تم اپنے سواروں کے پاس جاؤ، تمہاری قیادت کے بغیر وہ بکھر جائیں گے۔ محمد اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے میں پیادے بھیج رہا ہوں۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو افسوس ہو رہا تھا کہ ابو سفیان نے اس کے ایک عزم کو کچل ڈالا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کو وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے اپنے سب سے بڑے دیوتاؤں حبل اور عزا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سالار کا حکم ماننا ضروری سمجھا اور اپنے سوار دستے کی طرف چلا گیا۔ اسے اطمینان ضرور تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب چند ایک ساتھی ہی رہ گئے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا اب کوئی مشکل نہیں ہوگا اور اس کے بعد مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ خالد کو میدان جنگ کی کیفیت بڑی اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے ذرا بلندی سے دیکھا تھا کہ احد کے دامن میں دور دور تک زمین خون سے لال ہو گئی تھی۔ کہیں گھوڑے تڑپ رہے تھے، کہیں خون میں نہائے ہوئے انسان کرا رہے تھے۔ زخمیوں کو اٹھانے کا ابھی کسی کو ہوش نہ تھا۔ پھر اس نے دیکھا پیادہ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا حلقہ بھی توڑ لیا تھا، اور قریش کے 3 آدمی عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ بن شہاب اور ابن کما رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ عجیب صورت یہ تھی کہ قتبہ کا سگا بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں لڑ رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، یا وہ لڑتے لڑتے بکھر گئے تھے۔ قتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پتھر برسائے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے والے 2 دانت ٹوٹ گئے اور نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ کے پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشانی پر خاصا گہرا زخم آیا۔ ابن کما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود کے زنجیر کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر رخسار میں اتر گئیں۔ ان سے رخسار کی ہڈی بھی بری طرح مجروح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برچھی سے دشمنوں پر وار کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے، جو قریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ان کی للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر سے گرانے والے قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے قتبہ پر حملہ کر دیا۔ قتبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ نکلا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح سے ہوش میں تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد کہتے تھے کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں، جس نے میری موجودگی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا ہے۔ وہ اکیلے ہی قریش کے طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے، انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی نہ رکتے۔ قریش غالباً بہت ہی تھک گئے تھے، وہ مارکے سے منہ موڑ گئے۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मों की तरफ तवज्जो दी। जो ख़वातीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी पिलाया, कपड़ों से जख्म साफ किए। उस वक्त ये देखा गया कि खुद की जंजीरों की टूटी हुई कड़ियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसार की हड्डी में उतरी हुई हैं। एक सहाबी अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु, जो अरब के एक मशहूर जर्राह के फर्जंद थे, आगे बढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारों से कड़ियाँ निकालने लगे, लेकिन हाथों से कड़ियाँ ना निकली। आखिर अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने दांतों की मदद से कड़ी निकाल दी। जब दूसरी कड़ी निकाली तो कड़ी तो निकल आई, लेकिन अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु के सामने के 2 दांत टूट गए। इसके बाद लोगों ने अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु को अल अफरम कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब है वो आदमी जिसके सामने वाले दांत ना हो। फिर वो इसी नाम से मशहूर हो गए। ये भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि इसके बाद अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ऐसे खूबसूरत दिखते थे कि उनके चेहरे से निगाह नहीं हटती थी। उम्मे ऐमन रदियल्लाहु अन्हा, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया रह चुकी थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुकी हुई थीं। उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत संभल चुकी थी। अचानक एक तीर उम्मे ऐमन की पीठ में उतर गया और उसके साथ ही दूर से एक कहकहा सुनाई दिया। सबने उधर देखा तो कुरैश का एक आदमी हब्बान बिन अल अरका दूर खड़ा हंस रहा था। उसके हाथ में कमान थी, ये तीर उसी ने चलाया था। वो हंसता हुआ पीछे को मुड़ा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीर साद रदियल्लाहु अन्हा बिन अबी वक्कास को देकर कहा कि ये शख्स यहाँ से तीर लेकर ही वापस जाए। साद रदियल्लाहु अन्हु ने, जो तमाम कबाइल में तीरंदाजी में खुसूसी शोहरत रखते थे, कमान में तीर डालकर हब्बान पर चलाया। तीर हब्बान के गर्दन में उतर गया। साद रदियल्लाहु अन्हु के तमाम साथियों ने बड़ी ज़ोर से कहकहा लगाया और हब्बान ने डगमगाते हुए चंद एक कदम उठाए और वो गिर पड़ा। आज खालिद जब मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा था और ओहद की पहाड़ी उफुक से ऊपर ही ऊपर उठती आ रही थी, उसे अपने कुछ साथी याद आने लगे। अकीदों के इख्तिलाफ ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया था, लेकिन खालिद को ये ख्याल भी आया कि बाज़ लोग अपने अकीदे को इसलिए सच्चा समझते हैं कि वो इसके पैरोकार होते हैं। हक और बातिल के फ़र्क को समझने के लिए बड़ी मजबूत शख्सियत की ज़रूरत होती है। एक सवाल उसे फिर परेशान करने लगा, मैं मदीना क्यों जा रहा हूँ? अपना अकीदा मदीने वालों पर ठोसने के लिए या उनका अकीदा अपने ऊपर मुसल्लत करने के लिए? उसे अबू सुफियान की आवाज़ सुनाई दी, जो एक ही रोज़ पुरानी थी। क्या ये सच है कि तुम मदीना जा रहे हो? क्या तुम्हारी रगों में वलीद का खून सफ़ेद हो गया है? सहरा में जाते हुए इन आवाज़ों ने कुछ दूर तक उसका ताक़ुब किया। फिर वो अपने उन दोस्तों की याद में खो गया जिनके खिलाफ वो लड़ा और जिनका खून उसके सामने बह गया था। उनमें से एक मुसाब बिन रदियल्लाहु अन्हु बिन उमैर भी थे। कुरैश जो मार्के से मुंह मोड़ गए थे, कुछ दूर ही पहुँचे थे कि खालिद ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अबू सुफियान को जा पकड़ा। उसने अबू सुफियान से पूछा, तुम लोग जंग को अधूरा छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मुसलमानों का दमखम खत्म हो चुका है। अबू सुफियान भी यही चाहता था कि ये मार्का फैसला कुन नतीजे पर पहुँचे। कुरैश के चंद सवार वहीं से पलट आए। खालिद देख चुका था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। यहाँ फिर अबू सुफियान ने खालिद को किसी और तरफ भेज दिया और कुछ आदमियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले का हुक्म दिया। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ और मुसलमान आन मिले थे। फिर इब्न कमा लड़ते हुए मुसलमानों का हल्का तोड़कर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुसाब रदियल्लाहु अन्हु बिन उमैर खड़े थे और उम्मे अम्मारा रदियल्लाहु अन्हा अपने करीब पड़े हुए 2-3 जख्मियों को पानी पिला रही थीं। उन्होंने जब कुरैश को एक बार फिर हमले के लिए आते देखा तो जख्मियों से हटकर उन्होंने एक जख्मी की तलवार उठा ली और कुरैश के मुकाबले के लिए डट गईं। कुरैश का सबसे पहला सवार जो उनके करीब आया, उस तक वो नहीं पहुंच सकती थीं। उन्होंने तलवार से उस घोड़े पर ऐसा वार किया कि घोड़ा गिर पड़ा
सवार घोड़े की दूसरी तरफ गिरा। उम्मे अम्मारा रदियल्लाहु अन्हा ने घोड़े के ऊपर से कूदकर कुरैश के इस आदमी पर वार किया और उसे जख्मी कर दिया। वो उठा और भाग खड़ा हुआ। मुसाब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु का कदबुत और शक्ल सूरत भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नुमाया मुशाबिहत रखती थी। इब्ने कमा मुसाब बिन रदियल्लाहु अन्हु को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर उन पर हमलावर हुआ। मुसाब रदियल्लाहु अन्हु तैयार थे। उन्होंने इब्ने कमा का मुकाबला किया। फिर दोनों में तेवजनी हुई, लेकिन इब्ने कमा का वार मुसाब रदियल्लाहु अन्हु पर ऐसा भरपूर पड़ा कि वो गिरे और शहीद हो गए। मुसाब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु बहुत ही लाडो में पले नौजवान थे, लेकिन तकफीम के वक्त उनका कफन भी अधूरा था। उम्मे अम्मारा रदियल्लाहु अन्हा ने मुसाब रदियल्लाहु अन्हु को गिरते देखा तो गैज़ व गज़ब से इब्ने कमा पर तलवार का वार किया, लेकिन इब्ने कमा ने जिस पहन रखी थी और वार करने वाली एक औरत थी, इसलिए इब्ने कमा को कोई जख्म न आया। इब्ने कमा ने उम्मे अम्मारा रदियल्लाहु अन्हा के कंधे पर भरपूर वार किया, जिससे वो शदीद जख्मी होकर गिर पड़ी। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करीब ही थे इब्ने कमा की तरफ बढ़े, लेकिन इब्ने कमा ने पैतरा बदल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऐसा वार किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद पर पड़ा। तलवार खुद से फिसलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पीछे एक गड्ढा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्म खाकर पीछे हटे और गड्ढे में गिर पड़े। इब्ने कमा ने पीछे हटकर गला फाड़ कर कहा, मैंने मोहम्मद को कत्ल कर दिया है। वो यही नारे लगाता मैदान जंग में घूम गया। उसकी आवाज़ कुरैश ने भी सुनी और मुसलमानों ने भी। कुरैश को तो खुश होना ही था, मुसलमानों पर इसका बड़ा तबाहकुन असर हुआ कि हौसले हार बैठे और ओहद की पहाड़ी की तरफ पसपा होने लगे। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शैदाइयों भागते हुए मुसलमानों को एक ललकार सुनाई दी, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रहे तो लानत है हम पर कि हम भी जिंदा हैं। तुम कैसे शैदाई हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के साथ ही तुम मौत से डरकर भाग रहे हो। मुसलमान रुक गए। इस ललकार ने उन्हें आग बबूला कर दिया। वो प्यादा थे, लेकिन उन्होंने कुरैश के घुड़सवारों पर हमला कर दिया। ये हमला खालिद और अक्रमा के घुड़सवारों पर हुआ था। खालिद को आज याद आ रहा था कि उसके हाथों कितने ही मुसलमानों का खून बह गया था। उनमें एक रफ़ा रदियल्लाहु अन्हु बिन वकश भी थे। खालिद के दिल में दर्द की एक टीस सी उठी। उसे कुछ ऐसा एहसास होने लगा जैसे वो बेमकसद खून बहाता रहा है, लेकिन उस वक्त वो मुसलमानों को अपना तरीन दुश्मन समझता था। अब मुसलमानों का दमखम टूट चुका था। प्यादे घुड़सवारों का मुकाबला कब तक करते? वो मजबूर होकर पहाड़ी की तरफ पसपा होने लगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने साथियों के साथ एक तंग सी वादी की तरफ जा रहे थे, जिस तरफ मुसलमानों ने फतेह की खुशी में अपना मोर्चा छोड़ दिया था और जंग का पासा अपने खिलाफ पलट लिया था। उसी तरह अब कुरैश के आदमी मुसलमानों की लाशों पर तड़पते हुए जख्मियों पर माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए टूट पड़े। इनमें से कुछ कुरैश रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में चले गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने उन पर ऐसी बेजिगरी से हल्ला बोला कि उनमें से ज़्यादातर कुरैश को जान से मार डाला और जो बच गए वो भाग निकले। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुलंद जगह पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से सूरत हाल का जायजा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबा में से 16 शहीद हो चुके थे। जो 14 जिंदा थे उनमें ज़्यादा जख्मी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंदी से मैदान जंग का जायजा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुसलमान नजर नहीं आ रहा था। मुसलमान ये समझकर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं, सख्त मायूसी के आलम में इधर उधर बिखर गए। कुछ वापस मदीना चले गए और कुछ कुरैश के इंतकाम से बचने के लिए पहाड़ी के अंदर मौजूद थे। यहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जख्मियों की तरफ तवज्जो देने की फुर्सत मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरफ तलाश कर करके थक गई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ पहुंची थी। करीब ही एक चश्मा था। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु वहाँ से किसी चीज़ में पानी लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाया।
हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्म धोने लगी। वो सिसक कर रो रही थी। खालिद को आज याद आ रहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर ने उसे रूहानी इत्मीनान दिया था, लेकिन एक ललकार ने उसे चौंका दिया। वादी में ललकार की आवाज़ बड़ी दूर तक सुनाई दे रही थी। कोई बड़ी ही बुलंद आवाज़ में कह रहा था, मुसलमानों खुशियाँ मनाओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा और सलामत है। इस ललकार पर खालिद को हंसी भी आई थी और अफसोस भी हुआ था। उसने अपने आप से कहा था कि कोई मुसलमान पागल हो गया है। हुआ यूँ था कि जिस तरह मुसलमान इक्का दुक्का इधर उधर बिखर गए या छुप गए थे, इसी तरह काब बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु नाम के एक मुसलमान इधर उधर घूमते फिरते पहाड़ी के उस मुकाम की तरफ चले गए जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुस्ता रहे थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उन्होंने जज्बात की शिद्दत से नारा लगाया, हमारे नबी जिंदा हैं। तमाम मुसलमान जो अकेले अकेले या दो दो चार चार की टोलियों में इधर उधर बिखर गए थे, इस आवाज़ पर दौड़ कर आए। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु भी इसी आवाज़ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे थे। इससे पहले अबू सुफियान मैदान जंग में पड़ी हुई हर एक लाश देखता फिर रहा था। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्दे मुबारक तलाश कर रहा था। उसे कुरैश का जो भी आदमी मिलता उससे पूछता, तुमने मोहम्मद की लाश नहीं देखी? इसी तलाश में खालिद उसके सामने आ गया। खालिद ने अबू सुफियान से पूछा, तुम मोहम्मद की लाश नहीं देखी? तुमने मोहम्मद की लाश नहीं देखी? नहीं, खालिद ने जवाब दिया और अबू सुफियान की तरफ जरा झुक कर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि मोहम्मद कत्ल हो चुके हैं? नाउजुबिल्लाह। हाँ, अबू सुफियान ने जवाब दिया, वो हमसे बचकर कहाँ जा सकता है? तुम्हें शक है? हाँ अबू सुफियान, खालिद ने जवाब दिया, मैं इस वक्त तक शक में रहता हूँ जब तक अपनी आँखों से ना देख लूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी आसानी से कत्ल हो जाने वाला शख्स नहीं है। मालूम होता है तुम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिलिस्म तारी है। अबू सुफियान ने तकब्बुर के लहजे में कहा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से नहीं? क्या तुम उसे नहीं जानते थे? जो शख्स इतनी कत्ल व गारत का जिम्मेदार है, एक रोज़ उसे भी कत्ल होना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो चुके हैं। जाओ और देखो, उसकी लाश को पहचानो, हम उनका सिर काटकर मक्का ले जाएंगे। ऐन उसी वक्त पहाड़ी में से काब रदियल्लाहु अन्हु बिन मालिक की ललकार गरजी, मुसलमानों खुशियाँ मनाओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा सलामत हैं। फिर ये आवाज़ बिजली की कड़क की तरह गरजती कड़कती वादी और मैदान में घूमती फिरती रही। सुन लिया अबू सुफियान, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मोहम्मद कहाँ है। मैं उस पर हमला करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला सकता कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके आऊँगा। कुछ देर पहले खालिद ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को पहाड़ी के अंदर जाते देखा था, लेकिन वो बहुत दूर था। खालिद हार मानने वाला और अपने इरादे को अधूरा छोड़ने वाला आदमी नहीं था। उसने चंद एक सवारों को साथ लिया और पहाड़ी के उस मुकाम की तरफ बढ़ने लगा जिधर उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाते देखा था। मशहूर मौर्रिख इब्ने हशाम की तहरीर से पता चलता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खालिद को सवारों के साथ उस घाटी पर चढ़ते देखा जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से बेसाख्ता दुआ निकली, खुदाए जुलजलाल इन्हें इस वक्त वहीं कहीं रोक ले। खालिद अपने सवारों के साथ घाटी चढ़ता जा रहा था। वो एक दर्रा सा था जो तंग होता चला जा रहा था। घोड़ों को एक कतार में होना पड़ा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों से चूर पड़े थे। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हा ने जब खालिद और उसके सवारों को ऊपर आते देखा तो तलवार निकालकर कुछ नीचे उतरे। वलीद के बेटे हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने ललकारा, अगर लड़ाई लड़ना चाहते हो तो इस दर्रे की तंगी को देख लो, इस चढ़ाई को देख लो, क्या तुम अपने सवारों के साथ हमारे हाथ से बचकर निकल जाओगे? खालिद लड़ने के फ़न को खूब समझता था। उसने देख लिया था कि ये जगह घोड़ों को घुमा फिराकर लड़ने के लिए मौजू नहीं है, बल्कि ख़तरनाक है। खालिद ने खामोशी से अपना घोड़ा घुमाया और अपने सवारों के साथ वहाँ से नीचे उतर आया। जंगे ओहद ख़त्म हो चुकी थी। कुरैश इस लिहाज से बरतरी का दावा कर सकते थे कि उन्होंने मुसलमानों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, लेकिन ये जंग हार जीत के बगैर ख़त्म हो गई थी।
لیکن یہ ہماری شکست تھی۔ خالد کو جیسے اپنی آواز سنائی دی۔ مسلمانوں کی نفری 700 تھی اور ہم 3000 تھے۔ ہمارے پاس 200 گھوڑے تھے۔ ہماری فتح تب ہوتی جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتے۔ خالد نے اپنے آپ میں جھنجھناہٹ محسوس کی۔ اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ اسے جنگ کا آخری منظر یاد آنے لگا۔ اس نے اس بھیانک یاد کو ذہن سے نکالنے کے لیے سر کو جھٹکا دیا، لیکن مکھیوں کی طرح یاد اس کے ارد گرد بھنبھناتی رہی۔ اسے اپنے آپ میں شرم سی محسوس ہونے لگی۔ جنگجو یوں نہیں کیا کرتے۔ خالد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی للکار پر واپس آ رہا تھا تو اس بلندی سے اس کی نظر میدان جنگ پر پڑی۔ وہاں لاشیں بکھری ہوئی تھیں، شاید ان میں بے ہوش زخمی بھی ہوں گے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے کے لیے نہ ابھی مسلمان آگے بڑھے تھے نہ اہل قریش۔ خالد کو ابو سفیان کی بیوی ہند نظر آئی۔ وہ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ اس کے اشارے پر قریش کی وہ عورتیں جو قریش لشکر کے ساتھ آئی تھیں اس کے پیچھے پیچھے دوڑی آئیں۔ ہند ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی۔ وہ اونچے قد کی اور فربہی مائل جسم کی پہلوان قسم کی عورت تھی۔ وہ ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی۔ کوئی لاش اوندھے منہ پڑی ہوئی نظر آتی تو وہ پاؤں سے ٹھوکر مار کر اسے سیدھا کر کے دیکھتی تھی۔ اس نے اپنی ساتھ کی عورتوں سے کہا کہ وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش تلاش کریں۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش مل گئی۔ ہند بھوکے درندے کی طرح لاش کو چیرنے پھاڑنے لگی۔ اس نے لاش کے کچھ اعضاء کاٹ کر پرے پھینک دیے۔ اس نے دوسری عورتوں کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑی تھیں۔ کھڑی دیکھ کیا رہی ہو؟ ہند نے عورتوں سے یوں کہا جیسے وہ پاگل ہو چکی ہو۔ یہ دیکھو، میں نے اپنے باپ، اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے قاتل کی لاش کا کیا حال کر دیا ہے۔ جاؤ اور مسلمانوں کے ہر ایک لاش کا یہی حال کر دو اور سب کے کان اور ناک کاٹ کے لے آؤ۔ اب وہ عورتیں مسلمانوں کی لاشوں کو چیرنے پھاڑنے کے لیے وہاں سے ہٹ گئیں اور ہند نے ایک خنجر سے حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر ہاتھ ڈالا۔ اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ تھا جو ہند نے خنجر سے کاٹ لیا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور بری طرح اسے چبانے لگی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے کلیجے کے اس ٹکڑے کو اگل دیا۔ خالد کو دور ابو سفیان کھڑا نظر آیا۔ ہند کی اس وحشیانہ حرکت نے خالد کا مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ وہ جنگجو تھا، وہ صرف آمنے سامنے آ کر لڑنے والا آدمی تھا۔ ناظرین، آج کے قسط میں اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اسی کہانی کے نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔